जी। हेलो वंदना जी। Okay, just 2 minutes and then ओके, we'll start. Okay. ऑल द बेस्ट सुनीता जी। हाँ, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग ऑल शीतल। द बेस्ट सुनीता जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, जय morning. जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Okay. Good morning, everyone. Keep everyone video on. So we'll start today's workshop this Monday now, Monday morning. So good morning, everyone, and welcome everyone. So आप सभी को इस वर्कशॉप में स्वागत है। और पर इससे सबसे पहले हम प्रेयर से शुरुआत करेंगे। So sit comfortable. जहाँ भी आप बैठे हैं बस कंफर्टेबल बैठ जाइए। रिमूव योर स्पेक्स। आप अपने स्पेक्स निकाल के कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, एनी कंफर्टेबल पोजीशन। हैंड्स इन नमस्ते और इन ज्ञान मुद्रा। ओके, आईज क्लोज। इनहेल and exhale. Inhale and exhale. With next inhalation, exhale with Omkar. Inhale. Om. Inhale. Om. Inhale. Om. Om Bhurvasvaha Tasya Vidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palm, cup your eyes, take your hands down. Thank you. So, आज के वर्कशॉप से पहले हम थोड़ा आरंभ योगा इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं. Okay, so Aram Yoga Institute is accredited by Yoga Certification Board by CB, Ministry of Ayush, Government of India. It is an ISO certified institute for the international standard that specify requirement for a quality management QMS, and it is running as an educational wing of Arambha Yoga Foundation, a public charitable trust registered under Bombay Charitable Trust Act. We work to enlighten the world, especially young aspirants, with quality education, training, and guidance in yoga teaching profession, and introduce them to the real essence of yoga and benefit of introducing and applying yogic practices to their lifestyle, resulting in improved life balance of an individual and hence turning up a better society. And I'm really proud and glad that I'm a member of this. I am one part of this Arambha Yoga Institute. So those who really want to do their yoga career, Arambha Yoga Institute is the best platform. Now today's workshop, Sunita ji is going to conduct, Sunita Mishra. So we just know a little bit about Sunita ji. So Sunita ji, she has done her graduation from sociology and she has done her post-graduation in human resource management. She is basically from Bhubaneswar, Odisha. She has settled in Vizag, Visakhapatnam. And her yoga qualification, she has done level 1 and 2 from Arambha Yoga Institute. So now I am giving this. Okay, now Sunita ji, I am making you host. And before this workshop start, I just wanted to request everyone keep their video on and be there for 5 days for this workshop.
And one feedback form we are going to share in the chat box. So don't forget to fill that feedback form before you leave. Okay. So Sunita ji, I am making you host now. Okay. Now I'm the host. Okay. Thank you, Vanna ji, for your beautiful introduction. And hello, everyone. Good morning, everyone. Welcome. First of all, I want to express my thanks to the director of Arambh Yoga Institute, Professor Sushma Maurya, Rita ma'am, Sanjeev sir, and Balakrishna sir for their guidance. Thank you, everyone. Hope you will all enjoy my yoga camp. Okay, let's start. Now I am sharing my PPT. Just a minute. Can you see it? Are you able to yes. see it? Okay. Yes, we can. Just make a full screen. Just a minute. Just a minute. Is it okay? This is my PPT. And my topic is osteoarthritis. And my name is Sunita Misra. And आज हम लोग इधर गैदर हुए हैं योगा के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर एक ओवरऑल नॉलेज के लिए. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, ओवरऑल नॉलेज के लिए योगा से क्या होता है, हमको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलती है. मेनली अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, बैक पेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, नी पेन है, कुछ भी होता है, हमको हेल्थ इश्यूज में बहुत बेनिफिट मिलती है. चाहे हेल्थ इश्यूज, मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, सबसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलती है योगा से. आजकल इसीलिए सब लोग योगा के लिए ज्यादा अवेयर हो रहे हैं. तो मुझे जानना है कि ये जो योगा है, योगा मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा? एनीवन कैन यू से? प्लीज म्यूट योर माइक. एंड हाँ, रश्मि, आर यू इंटरेस्टेड? देन अनम्यूट योर माइक. Ma'am, connection with inner soul, I guess. Okay. Anyone? You just did it. Okay. Nice. Anyone? Okay. Yeah, I'm it's a telling- holistic approach to health. Yes. Mind, very body, nice, and sir. Correct. Yes, is the sir. main thing. Okay. Thank you, sir. Actually, just you derive the meaning of yoga or yog from the word only. Yog. हम बचपन में पढ़े थे योग एंड वियोग. योग मीन्स ऐड करना है किससे? इधर 2 + 3 + 4 को ऐड नहीं करना है, ऐड करना है ब्रीथ, माइंड एंड बॉडी को ऐड करना है थ्रू योगा. मतलब जब हमारा मूड, मतलब हम ज्यादा गुस्से में है, एंगर है, या खुशी या दुखी है, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न कैसा रहता है? कभी मार्क किए हो? ब्रीदिंग में आपका इरेगुलरिटी रहता है, उसी को रेगुलर में लाना है आपको. आपका माइंड, मतलब आप कुकिंग कर रहे होगे, माइंड और कहाँ रोम कर रहा है. ओके. तो योगा से हम लोग यूनाइट कर सकते हैं किससे? ना बॉडी, माइंड एंड ब्रीथ को. मतलब सटक्रिया, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ओके, एंड मुद्रा बंध. इससे हम लोग अपना माइंड, बॉडी और ब्रीथ को स्टेडी कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं. ओके, दिस इज योगा. ओके, नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं. बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर. सॉरी, बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर. हम लोग को क्या बेनिफिट मिलता है? हम क्यों प्रेयर करते हैं क्योंकि इट कनेक्ट्स विथ आवर ऑलमाइटी, increases concentration, helps in controlling our anger, calms down our mind. कोई भी योगा
से पहले या योगा नहीं करते हैं या कुछ भी काम शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर करते हैं, क्योंकि जो भी रिजल्ट होगा हम गॉड्स विल बोल के उसको एक्सेप्ट करेंगे, इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें लॉस होगा तभी भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर गॉड में बिलीफ होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो इट्स ओके, जो भी होगा हम एज ए गॉड्स विल वी कैन एक्सेप्ट इट वेरी इजीली। ओके, नेक्स्ट पेज। हम अपना अभी आते हैं एक्चुअल पॉइंट पर, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए वेरी कॉमन डिजीज इन ओल्डर पीपल। एक्चुअली ये 40 इयर्स के बाद स्टार्ट होता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, चलिए समझते हैं। उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी, मैं ये टॉपिक क्यों ली ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब मैं 40 में एंटर की तभी मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो गया था। उसके लिए मुझे 3-4 इयर्स बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। डॉक्टर के पास फर्स्ट गई, जाने के बाद वो मेडिसिन दी, इट्स ओके। 1-2 महीना खाने के बाद मेरा पेन स्वेलिंग सब ठीक हो गया। अगेन बैक किया 5 to 6 मंथ्स, ऐसे 2-3 टाइम्स देखने के बाद मैं बोली नहीं, ये मेडिसिन में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये टेम्पररी कंट्रोल कर सकते हैं। तो उससे बेटर है कि मैं क्यों ना योगा करूँ। योगा से मैं अक्वेंटेड हूँ 15-16 ईयर्स हो गया। यही है कि मैं रेगुलर नहीं होती थी, थोड़ी दिन करती थी फिर ब्रेक ले लेती थी, ऐसे होता था, रेगुलर नहीं होती थी। उसके बाद जैसे मैं रेगुलर करने लगी ना तो ऐसा ऐसा इम्प्रूव हुआ। वही सेम 1 साल करती थी फिर बैक होता था, लेकिन मैं अपना योगा कभी नहीं छोड़ा। ओके, मैं कोशिश करती रही, मुझे ठीक होना है। लेकिन अभी गॉड्स ग्रेस मैं अभी पूरा ठीक हूँ। ओके, ईच एंड एवरी आसन्स में करती हूँ। अभी समझते हैं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। Osteo means bones, arth means joint, and arthritis means inflammation, swelling. It's a degenerative joint disease in which the protective cartilage that cushions the end of your bones wears down over time. मतलब ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये कोई भी जॉइंट पर आ सकता है बॉडी में। ओके, कोई भी जॉइंट पर आ सकता है। ये जो मैं एग्जांपल के लिए ली हूँ नी आर्थराइटिस और नी पेन जो होता है उनके ऊपर वही एग्जांपल ली क्योंकि ये कॉमन होता है। क्यों कॉमन होता है ना, नी के ऊपर बॉडी का पूरा प्रेशर रहता है, सीधी सी बात है। इसीलिए नी में पेन, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज कॉमन। ओके, तो मैं समझा रही हूँ ये नी जॉइंट को लेके। ये जो नी जॉइंट का ये जो थाई बोन है उसका नाम है फीमर, और डाउनवर्ड जो बोन है वो है टिबिया। ओके, नी के बिलो जो बोन है वो टिबिया। एट द एंड ऑफ द बोन देयर आर कार्टिलेजेस टू गिव द कुशन फीलिंग्स। आपका रब नहीं होगा बोन टू बोन। ओके, तो कुशन लाइक फीलिंग, आपको कोई पेन नहीं होगा, कुछ नहीं, रब नहीं होगा बोन में तो आपको पेन नहीं होगा। लेकिन क्या होता है जब विद टाइम बीइंग ये कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, जैसे हम सोफा यूज करते हैं कितना इयर्स के बाद वो कंफर्टेबिलिटी रहता है क्या, वो कुशन डैमेज करता ही है। ऐसे ही इसका कार्टिलेज विद द टाइम बीइंग हम यूज करते जाते हैं तो डैमेज होता ही है। ओके, और ये इरिवर्सिबल है, कुछ भी हो जाए ये एक बार डैमेज होने के बाद ये कार्टिलेज कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। ओके, ये होने के बाद जब कार्टिलेज डैमेज होता है तो बोन टू बोन रॉब होता है। बोन टू बोन रॉब होने से हमको पेन होती है, नॉर्मल सी बात। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, कोई भी आपके बॉडी जॉइंट में, बोन जॉइंट में कहाँ पर भी पेन आ सकती है। फिंगर्स जॉइंट में, रिस्ट में, शोल्डर जॉइंट में, स्पाइन में, हिप जॉइंट्स एंड एंकल जॉइंट्स, कहीं भी पेन आ सकता है। ओके, कहीं भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है।
इज इट रियली ऑस्टियोआर्थराइटिस? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस अलग डिजीज है. ऑस्टियोपोरोसिस इज ए बोन डिजीज एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस इज डिजेनरेटिव डिजीज. कार्टिलेज डैमेज होता है तभी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है. बट ऑस्टियोपोरोसिस टोटली डिफरेंट, इट्स ए बोन डिजीज. लेकिन लोगों में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ था. कोई बात कर रहे हैं, मान लो 2 जन डिस्कशन हो रहा है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मुझे भी हुआ था. मैं डॉक्टर के पास गई थी, हाँ 3 मंथ्स का 2 मंथ्स का कैल्शियम टैबलेट दिए थे. कैल्शियम इज नॉट द रिमेडी, और कैल्शियम कैन कंट्रोल ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस इट्स जस्ट ए प्रिवेंटिव मेथड. ओके. ऑस्टियोपोरोसिस मेन हुआ कैल्शियम डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है. इट्स ए बोन डिजीज. सिंपली, osteoporosis is a bone disease that develops when bone mineral density and bone mass decreases, or when the quality or the structure of bone changes. Bone mass is made up of a substance that is called bone matrix, and bone matrix consists of calcium, potassium, magnesium, phosphorus and different types of proteins. आप बोलोगे अगर इतना आइटम, मतलब इतना मटेरियल चाहिए, तो क्यों कैल्शियम कम होने से, डिफिशियंसी होने से मेनली ऑस्टियोपोरोसिस होता है? बिकॉज जस्ट लाइक यू थिंक एक पनीर का सब्जी बनाने जा रहे हो, पनीर ही उसमें कम होगा तो ठीक से बनेगा क्या? ऑल स्पाइसेस आर रेडी बट पनीर कम. तो मेन जो उसका अमाउंट है बोन मैट्रिक्स में, बोन मास में, वो कैल्शियम ही चाहिए, और कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस हो जाने से क्या हो जाएगा? फ्राजाइल बोन, बोन बिकम्स वीक एंड इट विल बिकम फ्राजाइल. फ्राजाइल मतलब थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा तो बोन फ्रैक्चर हो जाएगा. जस्ट लाइक आप इवन स्नीजिंग, कॉपिंग करने से भी मल्टीपल फ्रैक्चर हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद. ओके. तो उसका कॉज क्यों, ये देखिए, मैं इधर नॉर्मल बोन ली हूँ. ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद, कैल्शियम डेफिशिएंसी के बाद, ये बोन का हालत ऐसे हो जाता है. देख रहे हो? जस्ट जैसे आप कभी कभी देखे हो कि कोई लकड़ी को कीड़ा होता है, वो पूरा कैसे बना देता है, लकड़ी को पूरा वीक बना देता है. ऐसे ही कैल्शियम डेफिशिएंसी से ये सब हो जाता है. ओके. ऐसा बोन हो जाता है. तो इसका कॉज क्या है? ओल्ड एज. नेचुरली ओल्ड एज होते होते हमारा कैल्शियम कम हो जाता है, खाने से भी हमारा बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होता है. कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है. एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स आफ्टर मेनोपॉज. मेनोपॉज के बाद हमारा बॉडी में काफी सारा हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती है, इसीलिए कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है. लेस प्रोटीन इंटेक. यस, प्रोटीन इज आल्सो नीड फॉर बोन्स. ओके. हाइपरथायराइड अगर होने से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. कैसे ना, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कैल्सिटोनिन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस करता है. इफ इट्स नॉट वर्किंग वेल, तो जनरल सी बात है वो करता नहीं है प्रोड्यूस जितना करना चाहिए. तो क्या करता है ना, वो कैल्सिटोनिन, किसी का ये ऑन है क्या माइक? ओके, ठीक है. कैल्सिटोनिन जो केमिकल प्रोड्यूस करता है, उसका काम क्या है ना, हम जब इंटेक करते हैं फूड के थ्रू कैल्शियम, वो कैल्सिटोनिन केमिकल कैल्शियम के साथ मिक्स होके, मतलब केमिकल रिएक्शन होके वो फिर ब्रेक डाउन करता है कैल्शियम को, हम जो इंटेक करते हैं, और वो बोन के साथ ऑब्जर्व होता है. जब कैल्सिटोनिन केमिकल प्रोड्यूस ही नहीं होता है, तो कैल्शियम क्या करता है? फ्लोट करता रहता है हमारा ब्लड में. फ्लोट करते करते वो कहाँ पर डिपॉजिट होता है? एक तो वो आर्टरी में ही डिपॉजिट हो जाता है. आर्टरी फिर ब्लॉक होता है. ब्लॉक होने के बाद क्या होता है आपको अच्छे से पता है. और नहीं तो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में बोन जॉइंट पर जाके डिपॉजिट होता है. ओके. तो आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है. थायराइड के लिए भी ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए? कैल्शियम सप्लीमेंट, प्रोटीन रिच फूड, विटामिन डी. विटामिन डी आपको पता है फ्री में आप कहाँ मिल सकता है ना, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट पर.
और आप मशरूम से भी मिल सकता है, ऑरेंज से भी मिल सकता है। एंड इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम, इसके लिए कोई आसन आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर होगा ऑस्टियोपोरोसिस तो आपका अगेन फ्रैक्चर हो जाएगा। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस का फर्स्ट स्टेज है ऑस्टियोपिनिया, उसमें आप थोड़ा बहुत आसन कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट आएंगे अपना टॉपिक के ऊपर। ओके, मेक टाइम टू अनवाइंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इट्स ए जॉइंट कार्टिलेज डिजेनरेशन, आपको ये पता है। मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस जब आप ज्यादा टाइम यूज नहीं करोगे जॉइंट में स्टिफनेस आता ही है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बाद। वन जॉइंट और मोर, एक जॉइंट पर हो सकता है ये, मोर देन वन जॉइंट पर भी हो सकता है। डिफॉर्मिटी इज रेयर, डिफॉर्मिटी मीन्स आप देखे वो बेंड हो जाता है, फिंगर्स, टोज, फुट, वो इतना जल्दी नहीं होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। टाइम जब क्रोनिक हो जाता है तो वो फिर डिफॉर्मिटी हो जाता है। नो रेडनेस वन स्वेलिंग, स्वेलिंग बहुत जल्दी नहीं होता है, हाँ टाइम वाइज ये स्वेलिंग भी होता है। जॉइंट स्पेस रिडक्शन, एक्चुअली हमारा एक माइंड में है कि जॉइंट में स्पेस रिडक्शन कम हो जाता है। ओके सॉरी, जॉइंट स्पेस रिडक्शन एक्चुअली लोग सोचते हैं कि हमारा जॉइंट में गैप हो गया है, कार्टिलेज डिजेनरेट हो गया है, इसीलिए गैप हो गया तो पेन हो रहा है। नहीं, एक्चुअली जॉइंट स्पेस रिडक्शन ये जॉइंट स्पेस को रिड्यूस कर देता है। कार्टिलेज जब डिजेनरेट हो जाता है, डैमेज होता है तो वो क्या होता है, रिड्यूस कर लेता है गैप में। ओके, तो आपको पेन होता है, रब। फिजियोथेरेपी का क्या काम है ना, वो आपको आपका बोन्स में थोड़ा गैप देते हैं, तो रब होना थोड़ा सा कम होता है, तो आपको पेन कम होती है। ओके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई यू आर प्रोन टू आर्थराइटिस। Affected joints might hurt during or after movement. ओके, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बाद आपका मूवमेंट के टाइम में आपको पेन होना जरूरी है, क्यों कि बोन टू बोन रब होता है। स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस माइट बी नोटिसेबल अपन अवेकनिंग और आफ्टर इनएक्टिव। अगर ज्यादा टाइम आप बैठ जाओगे, थोड़ा रेस्ट कर लोगे, मूव नहीं करोगे ज्यादा टाइम, और स्टिफनेस आ जाती है। टेंडरनेस, योर जॉइंट माइट फील टेंडर व्हेन यू अप्लाई लाइट प्रेशर टू और नियर इट। अफेक्टेड जॉइंट पर आप थोड़ा सा प्रेस करोगे ना, वो पेन आपको फील होगा। क्यों फील होगा ना, आपका नी टू जब बोन टू बोन रब होता है तो क्या होता है ना, आपका अराउंड में जितना सॉफ्ट टिश्यूज है वो हॉट होती है, इसीलिए पेन होता है। वो बोन स्वेलिंग नहीं होता है, टिश्यू स्वेलिंग होता है, अराउंड जितना सॉफ्ट टिश्यूज होता है। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, नेचुरली हमारा फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाएगा। ओके, पूरा फोल्ड आप नी को जो पूरा फोल्ड करवाते हो वो नहीं होगा। ग्रेटिंग सेंसेशन, हम जब वॉकिंग करेंगे या कोई स्लो एक्सरसाइज करेंगे या आसन करेंगे तो उसमें किट किट का आवाज आएगा, पॉपिंग और क्रैकलिंग का एक साउंड आएगा। ओके, जस्ट स्वेलिंग, दिस माइट बी कॉज्ड बाय स्लिप टिश्यू। हाँ, दिस माइट, हाँ, तो क्या होता है, स्वेलिंग कहाँ पर होता है, अभी आपको मैं बोली कि जब बोन्स रब होता है एक दूसरे के साथ, फ्रिक्शन होता है, तो उसके अराउंड में जितना भी टिश्यूज है वो हॉट होते हैं, वहां पर स्वेलिंग होती है। नेक्स्ट, लेट्स डाइव मोर डीप इनटू ऑस्टियोआर्थराइटिस।
old age, one of the reason. Women are more likely to develop osteoarthritis, though it is not clear why. मेन ये बात है, कॉमन बात है, वोमेन का हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत होता है और प्रेशर भी एक लेडी वोमेन के ऊपर ज्यादा रहता है। ओके, क्योंकि वो डिलीवरी करता है, हाउस होल्ड पूरा काम रहता है। ओके, तो नेचुरली वोमेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है, इसीलिए ये डिजीज कॉमन है उनके लिए। ओबेसिटी, ओबेसिटी इज अ कॉमन, क्योंकि पूरा बॉडी का प्रेशर आपका नी जॉइंट पर रहता है। अगर आपका नी का पेन कम करना चाहोगे तो फर्स्ट आपको वेट कम करना पड़ेगा। जब वेट कम कर लोगे ना तो 50% आपका ऐसे ही कम हो जाएगा पेन। और क्या रीजन हो सकता है? जॉइंट इंजुरीज, injuries that occur when playing or from an accident can increase the risk of osteoarthritis. जब ये जॉइंट इंजुरी होता है, कभी खेलते खेलते बचपन में हम गिर जाते हैं या कोई एक्सीडेंट से हमको जॉइंट में इंजुरी लगा है, तो क्या होता है उस टाइम में पता नहीं चलता है, कोई पेन नहीं, थोड़ी दिन ट्रीटमेंट के बाद आप ठीक हो जाते हो। लेकिन जैसे ही एक एज क्रॉस करते हो वो पेन स्टार्ट होता है वही जॉइंट पर। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा एक एज होता है हमारा मसल्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं और बर्डन ले लेते हैं बॉडी का। ओके, कार्टिलेज अगर डैमेज हो गया थोड़ा बहुत तो पेन नहीं चलता। जैसे ही आपका एज होता जाएगा तो जब मसल्स आपका ये हो जाएगा, वीक हो जाएगा, आपको पेन्स फिर स्टार्ट हो जाएगा। जेनेटिक्स, yes, I am agree with this point 100%, with 100%. Why? My father and mother has osteoarthritis. And मेरे फादर को सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस था और उनका एज अभी 91 है और उनका बो लेग हो गया था, मतलब सीवियर हो गया था, और उनका 10 इयर्स बैक नी रिप्लेसमेंट हो गया था और अभी वो ठीक है, एकदम परफेक्ट। मेरे मम्मी 84 इयर्स के हैं, उनको भी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, लेकिन उनका एक कंट्रोल में है, बहुत ज्यादा अभी भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पूरा फोल्ड करके वो सुखासन वज्रासन में नहीं बैठ सकते, लेकिन कोई स्वेलिंग नहीं, पेन भी ज्यादा नहीं। ओके, तो ये किसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं? कोई कोई एक कंट्रोल में लाइफ टाइम भी रह सकते हैं। ओके, सर्टेन मेटाबॉलिक डिजीजेस, it includes diabetes and a condition in which our bone has too much iron. आयरन क्या? हमारा बॉडी में अगर कोई भी चीज ज्यादा हो गया वो साइड इफेक्ट आता ही है। जैसे डायबिटीज से क्या रिलेशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस का? टाइप 2 डायबिटीज में आपका वेट गेन हो जाता है, नेचुरली वेट गेन होगा तो नी में प्रेशर आएगा ही। और ऐसे ही आयरन जब ज्यादा हो जाता है या कैल्शियम भी ज्यादा हो जाता है या प्रोटीन भी ज्यादा हो जाता है बॉडी में, वो नी जॉइंट पर, कोई भी जॉइंट पर आके डिपोजिट हो जाता है। वो आपको कैसे इफेक्ट देता है? जैसे प्रोटीन यूरिक एसिड से कन्वर्ट होके आपका जॉइंट में डिपोजिट होगा। जब जॉइंट में यूरिक एसिड डिपोजिट होगा वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जब बोन में कार्टिलेज डैमेज है और उसमें वो भी नीडल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा तो बोन टू बोन रब होने से नेचुरली आपको ज्यादा पेन होगी। ओके, ऐसे कैल्शियम जब डिपॉजिट होता है नी जॉइंट में क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आ जाता है। अगर ये ज्यादा डेवलप हो जाएगा तो गाउट बोल के एक डिजीज स्टार्ट हो जाता है, बोन डिजीज। वो क्या करेगा, आपका बोन टू बोन जैसे गम में जोड़ते हैं ना क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में, इसे जोड़ लेगा, तो आप मूव करने के लिए भी पॉसिबल नहीं होंगे तभी। ठीक है, और ये आगे बोलते, नेक्स्ट पेज। लेट्स सी हाउ ऑस्टियोआर्थराइटिस अफेक्ट अस। हमको कैसे अफेक्ट करते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए डिजेनरेटिव डिजीज दैट worsens over time resulting in chronic pain. किस किस का? टाइम बिंग, जैसे लोग थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, योगा एक्सरसाइज कुछ नहीं करते हैं,
तो आहिस्ता 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 ये इतना खराब हो जाता है कि बोन लेग हो जाता है। जब बोन लेग और क्रोनिक पेन हो जाएगा, इसको कुछ भी, ना योगा से ना फिजियोथेरेपी से, किसी से भी आप ठीक नहीं कर सकते हो। एक ही सॉल्यूशन रह गया, सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट। ओके, उससे पहले ही हमको कंट्रोल करना है जब स्टार्टिंग स्टेज में। जॉइंट पेन स्टिफनेस कैन बिकम सीवियर एनफ टू मेक डेली टास्क डिफिकल्ट। जब जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, इवन हम लोग डेली टास्क करने में भी एबल नहीं रहते हैं, कर नहीं पाते, हमको पेन होता है। इवन 1 घंटा कुकिंग भी करने से खड़े होके हमको बहुत पेनफुल रहता है वो। डिप्रेशन एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस कैन रिजल्ट फ्रॉम द पेन। ऑब्वियसली अगर बॉडी में पेन रहेगा तो हमको नींद कैसे प्रॉपर होगी, साउंड स्लीप नहीं होगा, हम लोग लो रहेंगे। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। नेक्स्ट, has arthritis got a cure to it? We can cure osteoarthritis because ये जो कार्टिलेज होता है ना, वो रिपेयरेबल नहीं है, रिवर्सेबल नहीं है, कुछ भी करो। ओनली वी कैन कंट्रोल इट बाय चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल। ये सब से हम लोग चेंज कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल से। ये सब मैं आपको एक एक समझाती हूँ। आप कंट्रोल कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को। 100% क्योरेबल नहीं है। जैसे मेरा अभी कुछ पेन नहीं है कोई भी जॉइंट में, जैसे ही मैं छोड़ूंगी योगा और कोई भी एक्सरसाइज हो, जो भी है, अगर छोड़ूंगी 2 मंथ्स, ओनली 2 मंथ्स मैक्सिमम, अगेन आ जाएगा। ओके, तो हमको योगा एक्सरसाइज और साथ में डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए। इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, चलिए देखिए। बाय चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल। ओके, लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, इसमें मुझे एक भगवत गीता का अच्छा सा श्लोक याद आ रहा है। युक्ताहार विहारस्य उक्त चेष्टस्य कर्मसु उक्त स्वप्नवबोधस्य योगः भवति दुःखः। One who follow the habits of moderate eating, sleeping, working and recreation can mitigate all his physical pains, physical and mental pains also. अगर आप मॉडरेट रहोगे, अपना खाने पीने में देख के, मतलब सात्विक आहार लेना है और टाइमली लेना है। ओके, और जब सोने जाते हैं 7-8 आवर्स का साउंड स्लीप चाहिए। ओके, वर्क करेंगे, बहुत प्रेशर से वर्क नहीं करना है, वर्क करना है लेकिन बहुत प्रेशर से एक्सर्शन लेके काम नहीं करना है। उसके साथ रिक्रिएशन भी चाहिए। जो आपको पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, बाहर घूमो, जहाँ करना है आपको, जो पसंद है उसके लिए भी टाइम दो अपना लाइफ में। तभी आपका ना मेंटल प्रेशर रहेगा ना फिजिकल प्रेशर रहेगा। ओके, देन वी कैन कंट्रोल इट बाय प्रैक्टिसिंग योगा एंड एक्सरसाइज। कैसे? योगा करने से क्या होता है? कार्टिलेज रिपेयर हो जाता है क्या योगा करने से? नहीं, कार्टिलेज रिपेयर नहीं होता है। क्या होता है, मान लीजिए नी जॉइंट में पेन है या रिस्ट जॉइंट में पेन है। जब हम लोग ये जॉइंट के अराउंड में जितना मसल से उसको स्ट्रांग कर लेंगे, तो वो बॉडी का वेट है ना, ले लेते हैं आधा से ज्यादा, तो आपका प्रेशर जो है वो प्रेशर जॉइंट पर ज्यादा नहीं रहेगा। ओके, आपका प्रेशर मसल्स ले जाता है आधा, तो आपको इतना प्रेशर नहीं होगा बोन जॉइंट। जस्ट लाइक हम लोग एजेड, जैसे एजेड हो जाते हैं, घर के जो एल्डर्स होते हैं, तो हम मतलब जब हम एज हो जाएगा, हमारा बॉडी साथ नहीं देगा, हमको सपोर्ट कौन देगा? हमारे बच्चे, चलने फिरने के लिए। ऐसे ही हमारे बॉडी के नी जॉइंट में जब प्रॉब्लम आती है तो मसल सपोर्ट देते हैं। तो मसल्स को योगा एक्सरसाइज के थ्रू और डाइट के थ्रू स्ट्रांग करना पड़ेगा। नॉट ओनली योगा एक्सरसाइज, आपका डाइट को भी पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। कैन रिड्यूस पेन थ्रू फिजियोथेरेपी, यस, बट इट इज वेरी कॉस्टली देन योगा। योगा से ये बहुत कॉस्टली है। हाफ एन आवर में, मुझे पता नहीं सर, मुझे पता नहीं वहां का रेट, यहाँ में
मैं वाइजैक की बात कर रही हूँ, हाफ एन आवर के लिए ओनली 1000 लेते हैं। ओके, तो कैन रिड्यूस पेन थ्रू फिजियोथेरेपी। इट्स बेटर कि आपको जब, जो लोग शुरू से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ओके, लेकिन जब भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन स्टार्ट हो रहा है तभी से अगर कर पाओगे योगा तो 100% आप कंट्रोल कर सकते हो कोई भी। लेकिन एक बार सीवियर होने के बाद आप कुछ नहीं कर, जब क्रोनिक में आ जाओगे कुछ नहीं कर सकते हो उस टाइम में। कैन रिड्यूस पेन थ्रू फिजियोथेरेपी। ओके, वी कैन कंट्रोल इट बाय हैविंग मेडिसिन में जैसे बोली ना, थोड़ी दिन खाओ, 6 months ओके, अगेन इट विल बैक, अगेन मेडिसिन खाओ। ऐसे करते करते क्या होता है, केयरलेस हो जाते हैं लोग। केयरलेस होते हैं तो क्या होता है ना, क्रोनिक हो जाती है, तभी और कुछ नहीं कर सकते, योगा से नहीं, फिजियोथेरेपी से नहीं, कुछ नहीं, आपको फाइनली सर्जरी ही करना पड़ेगा। ओके, तो बेटर है टाइम रहते रहते हम इसको कंट्रोल कर लें। देन ये ऑस्टियोआर्थराइटिस पार्ट खत्म हुआ। अभी क्या करेंगे जानते हैं, सट क्रिया। कैसे कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सट क्रिया फास्ट हो गया, हमको सट क्रिया करना है। सट क्रिया मतलब आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन करने से पहले सट क्रिया करके हम अपना इंटरनल बॉडी को क्लींजिंग करना है। ओके, हम जो करते हैं आसन प्राणायाम, ये सब हमारा आउटर बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन बेटर है कि हम शॉर्ट क्रिया करके अगर बॉडी का इनसाइड से ऑर्गन को क्लियर कर लेंगे तो हमारा जो इफेक्ट रहेगा, बेनिफिट्स हमको ज्यादा मिलेगा आसन प्राणायाम मेडिटेशन से। ओके, क्या क्या है, कपालभाति। कपालभाति सब लोग जानते हैं कि कपालभाति is a pranayam, but it's not a pranayam, it's a शट क्रिया। मतलब जैसे हम लोग बमन धोती जल नेति वाटर से क्लीन करते हैं, कपालभाति एयर से क्लीन करता है बॉडी पार्ट्स को। ओके, ये हो गया जल नेति। आपको साइनस प्रॉब्लम, अस्थमा के लिए ये बहुत अच्छा रहता है जल नेति। और ये हो गया बमन धोती, क्लींजिंग योर स्टोमक। इसमें क्या करते हैं, मॉर्निंग में 2 लीटर सलाइन वाटर पी लेते हैं और उसको इमीडिएटली वोमिट कर देते हैं तो पूरा स्टमक क्लियर हो जाता है। त्रैटक मेडिटेशन, इट्स ऑल्सो है शॉर्ट क्रिया। ये कैसे आप बोलोगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ इसका क्या लिंक है। नेचुरली क्या होता है ना, हमारा 99% जो डिजीजेस है वो होता है साइकोसोमैटिक, मतलब माइंड से स्टार्ट होता है। ओके, जब हमारा बॉडी में कोई भी पेन रहता है, हम उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेंगे माइंड को तो पेन अपने आप कम हो जाता है। जस्ट लाइक त्राटक में हम लोग गेस करते हैं कोई भी चीज को, तो गेस करने के टाइम में हमारा माइंड स्टेडी हो जाती है, हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं वो पेन से, तो अपने आप कम हो जाता है। ओके, इसीलिए त्राटक इज ऑल्सो नेसेसरी। नेक्स्ट आते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम is very much necessary for warm up and it keeps ready to do further asanas। फर्दर आसन के लिए ये हमारा बॉडी को रेडी कर लेता है। ओके, उसमें सब आपको पता है, नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, सब जॉइंट को हम ओपन करते हैं, लूजनिंग एक्सरसाइज करते हैं। मधु जी शायद आपका अनम्यूट है, अनम्यूट है। म्यूट में ही है। हाँ, स्मिता जी का है। ओके, देन उसमें सारे जॉइंट्स मूवमेंट करना है, नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, रिस्ट मूवमेंट, फिर फिंगर्स मूवमेंट, ये सब करना है। ओके, ये सब टोज मूवमेंट, एंकल मूवमेंट, ये सब, ये है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम इज वेरी मच नेसेसरी। ओके, एंड सूक्ष्म इट कैन डू एवरीवन। ओके, बच्चे से लेकर पूरा सीनियर सिटीजन तक सब लोग सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं।
स्टैंडिंग आसन, ये सब स्टैंडिंग आसन है जो आपको हेल्प करेगी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। ओके, ताड़ासन, हस्तोत्तानासन, वृक्षासन, अर्ध चक्रासन, फिर पादहस्तासन, अर्ध कटी चक्रासन, कटी चक्रासन, उत्कटासन और त्रिकोणासन। ओके, देन ये सब सिटिंग आसन है। मतलब आप बोलोगे कि सब तो मुझे दिख रहा है, मेन इसका क्या उष्ट्रासन का क्या लिंक है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। ये हम आपका अपना स्पाइन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्पाइन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स सपोर्ट टू योर होल बॉडी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहीं पर भी हो सकती है, ये स्पाइन में भी, एनी जॉइंट पर, तो ये भी जरूरी है। हाँ, नी पेन के लिए स्पेशल कुछ कुछ एक्सरसाइजेस है, मतलब आसन से, आइडियल आसन से। एंड ये सब लाइंग डाउन आसन, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। पादचालन आसन, जस्ट लाइक साइकिलिंग और पेडलिंग, ये नी पेन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ओके, देन आएंगे प्राणायाम। ओके, जैसे मैं बोली, हमारा ज्यादा जो डिजीजेस होता है वो साइकोसोमेटिक होता है, माइंड से स्टार्ट होता है। माइंड, ब्रीद और बॉडी को अगर स्टेबल कर लेंगे और यूनाइट कर लेंगे, हमारा आधा डिजीज ऐसे ही खत्म हो जाएगा बॉडी का। ओके, तो प्राणायाम से हम अपना माइंड को स्टेबल कर सकते हैं। चले वाते चले चलम चितम, निश्चले निश्चलम भवेत। जब तक अपना जो प्राणवायु को, एयर को, जो हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, और प्राणवायु को जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक माइंड भी कंट्रोल नहीं होगा। जैसे ही आप अपना ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लोगे, ऐसे माइंड इमीडिएटली स्टेबल हो जाएगा। जस्ट देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, इधर सुन रहे हो, माइंड उधर कहाँ भाग रहा होगा। अब जैसे ही अपना नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, ब्रीदिंग को क्लोज करेंगे, अपना माइंड भागना बंद हो जाएगा, रोमिंग करना बंद हो जाएगा, इधर ही स्टेबल हो जाएगा आप जो भी काम कर रहे हो। तो माइंड और ब्रीथ को स्टेबल रखने के लिए प्राणायाम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, क्या क्या हम लोग प्रैक्टिस करेंगे? भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, सेक्शनल ब्रीदिंग। उसके बाद और सारा है, शीतली, शीतकारी। लेकिन शीतली शीतकारी इज नॉट आइडियल फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब पूछोगे क्यों ना? इट गिव्स ए कूलर इफेक्ट टू द बॉडी। ओके, तो ये आइडियल प्राणायाम नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। क्या होता है आपको प्राणायाम होने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? इधर सारा है, इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी, इंक्रीजेस माइंडफुलनेस, इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर, ये सब आपका बेनिफिट्स है। ओके, ये हो गया योग मुद्रा, महामुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा। ये लेकिन थोड़ा सा 6 मंथ्स 8 मंथ्स करने के बाद ये जनरली प्रैक्टिस करते हैं। बिगनर्स के लिए मुद्रा जनरली नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ना? उसके लिए 3 बंध लगाना पड़ता है, जालंधर बंध, मूल बंध एंड उड्डयन बंध। बंध जनरली हम लोग स्टार्टिंग में बिगनर्स नहीं कर सकते हैं, लगा नहीं सकते हैं, उसका भी बैड इफेक्ट्स आएगा बॉडी में। ओके, फिर हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा में बहुत सारा मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा, चीन मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा एंड शंख मुद्रा। ओके, उसका डिफरेंट इफेक्ट है बॉडी पर। लेकिन हम मुद्रा क्यों लगाते हैं ना? हम मेडिटेशन प्राणायाम के टाइम में हमारे बॉडी में एनर्जी क्रिएट होता है, विश्व शक्ति मिलती है जो कि इनविजिबल है। वो विश्व शक्ति को हमारे बॉडी के अंदर रखना है। जैसे हम अपना पाम को ओपन करके अगर हम लोग प्राणायाम मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा? वो ड्रेन आउट हो जाएगा। हमको लक करके रखना है तो वो एनर्जी बाहर नहीं जाएगा और आपके बॉडी में जो नाड़ी का चैनल है उधर मूव करेगा। ओके, मूव करने से आप हेल्दी रहोगे,
आप आध्यात्मिक की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये बोलिए, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, महाबंध, ये सब बंध यूज होता है योगा में, लेकिन आपको एटलीस्ट 6 to 8 months प्राणायाम कंटिन्यू करना पड़ेगा। 10 मिनट्स 15 मिनट से कुछ नहीं होगा। प्राणायाम आसन पूरा करना पड़ेगा, हाफ एन आवर एटलीस्ट एवरी डे प्राणायाम करने के बाद 6 to 8 months के बाद आप ये सब बंध यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है बेनिफिट्स ऑफ मुद्रा एंड बंध, आपको सारा बोली हूँ। इट गिव्स जॉय एंड डिलाइट, जॉय एंड डिलाइट और हैप्पीनेस। इट लव्स द एनर्जीज इनसाइड द बॉडी। ओके, ये सब आपको बेनिफिट्स सब मिलती है। मुद्रान बंध ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द माइंड, ये सब बेनिफिट्स आपको मुद्रान बंध से मिलती है। मेडिटेशन, श्योर मेडिटेशन से सबसे बेस्ट है मेडिटेशन जो कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि हमारा आदत है, हमारे माइंड में बहुत सारा थॉट्स आते हैं। जैसे ही हम चुपचाप होके आंख बंद करके बैठते हैं, आइज क्लोज करके बैठते हैं, हमको बहुत सारा थॉट्स आते हैं, माइंड इधर उधर रोम करने लगता है। उसको कंट्रोल करके, जितना बार आपका माइंड रोम करेगा उतना बार आपको कंट्रोल करके इनसाइड में लेना है, फिर जाएगा, फिर कंट्रोल करके इनसाइड में लेना है। ऐसे करते करते प्रैक्टिस से ये सब पॉसिबल है, लेकिन टाइम लगती है। तो उसमें क्या है, मेडिटेशन में प्राण धारणा, देह धारणा, प्राणायाम, जाप, योग निद्रा, विपස්සना, प्रेक्षा और चक्रा मेडिटेशन भी है। बहुत सारा मेडिटेशन है। हम लोग ये सब तो पॉसिबल नहीं है आई थिंक, लेकिन जितना होगा 4 दिन में 4 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन हम जरूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, डाइट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट विथ योगा एंड एक्सरसाइज। जैसे बोली, हमको अपना वेट लॉस करना है, ये सब फास्ट फूड को तो फास्ट आपको कट करना है अपने डाइट से। ओके, नेक्स्ट, ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत सारे वेजिटेबल है जिसमें प्रोटीन भी अच्छा से मिल जाती है, कैल्शियम अच्छा से मिल जाता है आपको, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाती है। और फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फूड अगर खाओगे तो खुद को फ्रेश फील करोगे। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हमारा डाइट रहेगा ऐसा ही हमारा मन रहेगा। ये सब ओमेगा 3 रहता है। ओमेगा 3 आपको लेना जरूरी है, क्योंकि जो स्वेलिंग होता है, हमारे जो जॉइंट में पेन होता है, अफेक्टेड जॉइंट होता है, उसका जो अराउंड में जो मसल्स रहता है, जो टिश्यूज रहता है, उसमें स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए आपको ओमेगा 3 लेना पड़ेगा। ओके, ओमेगा 3 में क्या क्या इंक्लूडेड है, आपका एवोकाडो, ऑलिव ऑयल और अखरोट, पंपकिन सीड्स, ये सब जो है, सालमन फिश, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो सालमन, नहीं तो चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, ये सब, पालक, ये सब ले सकते हो ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए। देन अवॉइड हाई कुकिंग टेम्परेचर। हाई कुकिंग टेम्परेचर कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू सब स्पॉइल हो जाता है इतना हाई टेम्परेचर में कुकिंग करने के बाद। ये सब अवॉइड करना चाहिए, हाई कुकिंग टेम्परेचर, लेकिन इसको लेना है। इट मोर फ्रूट्स एंड वेजेस आर ओमेगा 3, इट्स वेरी मच नेसेसरी। ओके, देन ये हमारा हो गया एंडिंग पेज। ओके, लास्ट में हम लोग प्रेयर करेंगे, एंड करेंगे। उससे पहले मैं जरूर आपका डाउट अगर कुछ होगा तो मैं क्लियर करूंगी। और ओके, मैडम एक क्वेरी था। जस्ट मिनट। हाँ जी, मैडम, this frozen shoulder, is it a part of this stroke? नहीं, नो, फ्रोजन शोल्डर इज टोटली डिफरेंट। ओके, फ्रोजन शोल्डर इज टोटली डिफरेंट। वो कुछ नहीं, ओनली स्टिफनेस के लिए। जैसे आप कोई मशीन को बहुत दिन के लिए छोड़ दीजिए। ओके, अभी सब लोग स्क्रीन तो ऑन कीजिए, फेस टू फेस होंगे, इंटरेक्ट करेंगे। रूबी, सब लोग आ जाओ सामने।
अच्छा लगता है रेणु जी, हाँ। तो क्या होता है ना, हाँ, फ्रोजन शोल्डर के बारे में आप पूछ रहे थे रेणु जी। फ्रोजन शोल्डर टोटली कुछ नहीं है, वो ओनली स्टीफ हो जाता है। जैसे एक मशीन को आप छोड़ दीजिए कितना कितना दिन में, वो चलना बंद हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा, ऐसे ही। जस्ट फ्रोजन शोल्डर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। So it is a muscular thing rather than bone thing. या ओके, मस्कुलर। एंड में ठीक है, मैं क्लियर करवाऊंगी। एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों को समझाऊंगी, मतलब सुनाऊंगी, कि आप योगा के साथ रिलेट कर सकते हो। इसके ऊपर जो भी क्वेरीज है मैं आपको क्लियर, एक छोटा सा स्टोरी आपको इंटरेस्ट आने के लिए, योगा के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, आप लोग बोलिए। ओके जी सुने। ओके, थैंक यू। तो एक बोलती हूँ स्टोरी कि पहले तो बच्चे कहाँ जाते थे लर्न करने के लिए। अब तो ऑनलाइन हो गया, हम लोग बैठ के लैपटॉप के सामने फेस टू फेस बात भी कर लेते हैं। पहले जाते थे बच्चे पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल में। और गुरुकुल कहाँ पर होता था ना, जंगल में, आउटसाइड ऑफ योर सोसाइटी, सोसाइटी से दूर जंगल में होता था गुरुकुल। और गुरुकुल में ऐसे ही एक गुरुकुल था। तो उसी गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे, डिसेबल्स थे उनके। एक बहुत अच्छे साधु थे, बड़े साधु थे। तो वो क्या हुआ ना, एक उनका एक शिष्य था जो कि गुरु को डेडिकेटेड था। वो शिष्य कुछ भी हो जाए 100% सरेंडरनेस और फेथ के साथ वो उधर शिक्षा ले रहा था। एक दिन कुछ काम के लिए वो शिष्य बाहर जा रहा था। पहले देखे ना, जो साधु लोग कभी भी जाते थे एक लोटा लेके हाथ में जाते थे, पानी का लोटा लेके हाथ में जाते थे। तो वो कोई बाहर जा रहा था, तो कोई गांव के थ्रू वो जा रहा था कुछ काम में। तो जैसे ही गांव में एंट्री किया, थोड़ी देर के बाद वो देखा कि एक 10-12 साल का बालक जिसकी मृत्यु मृत्यु हो गई थी, जो तो वो लेटा हुआ है, बार में लेटे लोग लेटाए हैं और बहुत दुख प्रकाश कर रहे हैं कि इतना छोटा सा बालक और इतना जल्दी चला गया, ये तो नहीं होना चाहिए, ना इंसाफी। तो वो शिष्य को भी थोड़ा सा दुख लगा, जो जा रहा था कुछ काम के लिए बाहर, तो वो थोड़ा रुक गया क्या हुआ देखने के लिए। तो उसको भी लगा नहीं, ये नाइंसाफी है, इतना छोटा सा बालक को नहीं जाना चाहिए, मतलब इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए। तो वो क्या किया, उधर बैठ गया और आंख बंद करके फिर थोड़ा सा पानी, लोटा से थोड़ा सा पानी लिया हाथ में, और उस बालक के ऊपर अपना गुरु का नाम लिया, और कुछ नहीं, गुरु का नाम लिया और छिड़क दिया बालक के ऊपर। जैसे ही छिड़का, थोड़ी देर के बाद बालक जिंदा हो गया और उठ के बैठ गया, जैसे वो नींद में सो रहा है और उठ के बैठ गया। तो सब लोग हैप्पी हो गए। तो वो यही बात आश्रम में भी फैल गया, उनके गुरु के पास भी ये बात गया। तो ठीक है, गुरु भी बहुत खुश हुए, चलो कुछ अच्छा काम किया बोल के। कुछ दिन के बाद सेम इंसिडेंट अगेन हुआ, लेकिन अभी इस बार था दूसरा शिष्य। ओके, दूसरा शिष्य के पास भी ये खबर पहुंच गया था पहले से ही। वो क्या किए ना, वो भी जैसे ही देखा कि एक ऐसे इंसिडेंट है, ऐसे सेम जैसे वो पहला वाला शिष्य किया था, ये भी सेम हाथ में पानी लिया, गुरु का नाम लिया और छिड़का। लेकिन उस टाइम वो इंसान जिंदा नहीं हुआ। क्यों, कोई बोल सकते हैं? Maybe the second जो शिष्य है वो he was not surrendered or he was not dedicated so much to that guru यस, than first one. करेक्ट करेक्ट रेणु जी, यू आर 100% करेक्ट। क्योंकि उतना डेडिकेशन जैसे पहले वाला शिष्य का था, उसका उतना डेडिकेशन नहीं था, उतना सरेंडर नहीं था, सरेंडरनेस, उतना फेथ नहीं था, कुछ तो कम था। वो अहंकार था कि हाँ, मैं शिष्य का नाम लिया, सॉरी, मैं अपना गुरु का नाम लिया तो ये जिंदा हो जाएगा। उसका माइंड में कोई फेथ नहीं था। इसीलिए मुझे एक ही बात आप लोगों से बोलना है, आप कोई भी टीचर के पास जाओ 100% डेडिकेशन के साथ, विदाउट डाउट, वो फेथ ही आपको आगे लेके जाएगा।
आप अगर डाउट एक क्वेश्चन मार्क ले आए ना, आप उधर ही स्टॉप हो गए। गुरु से डांट मिल सकता है कभी भी, उसको माइंड में कभी नहीं लेना है। ओके, अगर कभी मिल गया तो डांट, मुझसे तो डांट सब हमेशा मिलता ही है। ओके, तो ठीक है, तो मेरा इतना बोलना था। और इसका मतलब नहीं है कि आप अपना डाउट्स मत पूछो, डाउट्स पूछो, एनी डाउट है आराम से बैठ के पूछो। ओके, लेकिन कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लेना है। कोई भी गुरु के पास जाओ, आपका पसंद का गुरु के पास जाओ, कोई बात नहीं। ओके, तो मेरा अभी काम फिनिश हुआ, मैं अपना काम कंप्लीट की। अभी आपको अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू दीपाली जी। Sunita ma'am, good हाँ हाँ morning. जी, राधिका मैम, Good morning. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? I am fine, Sunita ji. Thank you so much. Today I am having holiday, so I attended your class. But I Okay. want to attend the next 3 days. But मेरा work time रहेगा, क्या recording मिल सकता है? हाँ, रिकॉर्डिंग ये सब आ जाएगा यूट्यूब में। Okay, okay, मैम अपलोड कर देंगे पूरा बाद में। ओके okay. Thank you. मैम वन डाउट इज देयर, ओके। जैसे हमारा एज आप बोली थी, जैसे एज हमारा बढ़ता है बोन में से कैल्शियम कम होते जाता है, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? शुड वी स्टार्ट द कैल्शियम टैबलेट्स और शुड वी टेक You द go to the you go to the doctor and check there. ओके, डॉक्टर कहेंगे आपको बोन डेंसिटी लेवल चेक करने के लिए। आप वो चेक करने के बाद अगर बोन डेंसिटी कम होगा तो आपको कैल्शियम लेगा। उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको डॉक्टर के पास जाना ही है बोन डेंसिटी देखने के लिए। ओके, आप अपना प्रॉब्लम्स बोलेंगे तो उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है वो डॉक्टर बोलेंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो। कुसुम जी, थैंक यू वेरी मच, आप अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाले। ओके, और किसी को कुछ, किसी का डाउट ही नहीं है? मैं इतना अच्छा से क्लियरली आपको समझा दी कि कोई डाउट ही नहीं है। नो डाउट। एक्चुअली मैम मेरे फैमिली में मेरे फादर इन लॉ को अर्थराइटिस है। ओके, माय मॉम आई थिंक इट शी आल्सो स्टार्टेड ऑफ जो स्वेलिंग वाला पार्ट आप बता रहे थे, या शी आल्सो, सो आई वांटेड टू अटेंड, या सो ओके, दैट, थैंक यू, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक्स फॉर द सेशन। थैंक यू। हम्म, और कोई? सुनीता जी, फीडबैक फॉर्म फिल अप करने के लिए सबको एक बार हाँ, रिमाइंडर। प्लीज एक बार मेरा फीडबैक फॉर्म वरना जी सेंड किए हैं चैट बॉक्स में, प्लीज फिल द फॉर्म, तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। एक सेकंड मैम के लिए मैं हाँ हाँ, इलामती जी, हाँ चलिए। जी, एक्चुअली हाँ जी, हमको डाउट पूछने का कुछ नहीं है, आप तो क्लास में एकदम परफेक्ट को लेके जा रहे हो, इसीलिए सब हैप्पी है। एक सेकंड भी हमको वेस्ट नहीं करते, आप तो थैंक यू, प्रॉपर कैसा थैंक यू। जाना है ऐसा लेके जा रहे हैं। सच में हम सभी कुछ ना कुछ 40+ में हेल्थ इश्यू में ही ज्वाइन हुआ सब, बट हैप्पी है आपका साथ। रियली थैंक यू, ऑनलाइन में अच्छा टीचर मिला हमको, वी आर प्राउड। थैंक यू सो मच। थैंक यू इलामती जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, और किसको, और कोई कुछ बोल रहे थे? ओके, सबका डाउट खत्म है, इतना अच्छा से क्लियरली बोल दी थी। हाँ हाँ जी, मैम, रोशनी। हाई टेम्परेचर कुकिंग जो आपने मेंशन किया, दैट इज ओनली ओवन कुकिंग। नॉट ओवन कुकिंग, आप देखे नहीं, तावा में कुछ बनाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, चाउमीन वगैरह, एक आग निकलता है, वो सब में मना है। अच्छा, हाई कुक, पराठा ना, हाँ, पराठा वराठा नहीं होता ना? नहीं नहीं, वो तो कम में भी आप थोड़ा कर सकते हो। हाई कुकिंग टेम्परेचर मतलब जस्ट लाइक माइक्रोवेव हो गया, या चाइनीज फूड हो गया। चाइनीज फूड में हम देखे हो ना कैसे कैसे करते हैं, वो सब अवॉइड करना चाहिए। नहीं, पराठा नहीं खाएंगे तो भाई यार क्या खा के जिंदा रहेंगे? जिंदा रहने के लिए खाना भी तो चाहिए ना।
रोटी पराठा छोड़ देंगे तो कैसे होगा? 1 मिनट गरम नहीं करना चाहिए। नहीं, टोटली अवॉइड करना है। माइक्रोवेव में रीहीटिंग क्या, कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओके, बेकिंग आइटम्स कुछ भी नहीं। सॉरी सॉरी रश्मि, यू आर ए फेमस बेकर। ओके, तो कभी कभी चलता है ना, और क्या कर सकते हैं हम हम तो लोग सब। लोग बेक्स खाना खाते नहीं है घर में, जस्ट सेल करते हैं, खाता कोई नहीं है। देखे ना कितना मतलब क्लेवर है, खुद को फिट रखना है। क्योंकि मतलब वो स्मेल कर करके ना इन लोग की खाने की एपेटाइट नहीं रहती है, रोज बनता है ना तो फिर नहीं कोई खाता, बाहर के लोग अच्छा, खाते हैं। ओके। So you are creating more yoga students. कितना Yes, big. actually she is my student. Rashmi is my student. She is creating more yoga students for me only. सच में जी, वो योगा का साथ गुड फ्रेंड्स मिला। वो हैप्पी है। अच्छा, थैंक यू But I think कभी-कभी actually खाना चाहिए. It also हाँ stimulates your mood and everything. I mean, मुझे इतना डायबिटीज है, but I like sugar and all. तो मुझे बहुत पसंद है खाना. And it actually stimulates your mood, especially the chocolate thing. It stimulates your mood and everything. So it is nice. ओके, तो कल मिलते हैं शार्प 9 o'clock विथ योगा कॉस्ट्यूम एंड योगा मैट। अपना मैदान में उतरेंगे। ओके, तो एक्सपीरियंस लेंगे 4 days का। ओके ओके, Thank you. तो हाँ, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। Thank you, Sunita ji. See you tomorrow. थैंक यू Bye. वंदना जी, सी यू टुमारो। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Fill the form also.